What is inflation? महंगाई or inflation is one of the most common refrains heard across the country. So, what is inflation? Inflation is the rise in the prices of goods and services. These can be of daily or common use items such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, or even industrial goods. Inflation means the average price rise over time. The opposite and rare fall in prices is called deflation. Inflation indicates a fall in purchasing power. That is, for instance, a 100 rupee note buys lesser amounts of the same commodity over a period of time. Inflation is measured in percentage. What are the effects of inflation? The purchasing power of the currency falls as goods and services get costlier. When inflation is high, the cost of living gets higher as well. Beyond a reasonable level, inflation ultimately hurts economic growth. A certain level of inflation is required in the economy to promote expenditure, encourage the production of goods and services, and to demotivate hoarding money in savings. As money generally loses its value over time, it is important for people to invest the money. Investing ensures the economic growth of a country. Who measures and controls inflation in India? In India, the Ministry of Statistics and Program Implementation measures inflation. Country's central bank, the Reserve Bank of India, works to limit inflation within a band through its monetary policy by using tools such as the repo rate. The government also influences inflation through its taxation and fiscal policy. Higher MSPs on agricultural products, taxes on petrol and diesel, or even clothes can lead to rise in inflation. A cut leads to a fall in inflation. So, how is inflation measured? In India, inflation is primarily measured by two main indices: WPI, or the Wholesale Price Index, and CPI, Consumer Price Index. WPI and CPI respectively measure wholesale and retail level price changes. CPI measures the rise in prices of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, etc., which consumers buy for end use. On the other hand, WPI captures the goods or services sold by businesses to smaller businesses for selling further. What are the main causes of inflation? Some of the major reasons behind inflation or rise in prices are high demand and low supply of goods. This creates a demand-supply gap which leads to hike in prices. Excess circulation of money. This leads to inflation as money loses its purchasing power. With people having more money, they also tend to spend more, which causes increased demand. For example, if more people want to buy tomatoes, then the tomato price will rise. Spurt in cost of production causes inflation. For example, soap and shampoo prices may rise if the chemicals used in making these get costlier. This is called cost push inflation. Is inflation bad for everyone? Inflation need not always be bad. Economists believe some inflation is necessary for economic growth. However, beyond a limit, inflation hurts both consumers and economic growth. Inflation also has an impact on the assets you hold. For someone with investments in real estate or stocked commodity, inflation means that the prices of their assets are set for a hike. Those who possess cash may be adversely affected by inflation as the value of their cash erodes. So governments and central banks work towards controlling inflation in an ideal range. Think and Grow Rich. Rich Dad, Poor Dad. The secret. You might have read all these books, but let me ask you. So this was a video discussing about inflation, which we have already started chapter inflation. Okay, so a little bit you got again an idea. Again, I am requesting everyone, whenever you people are entering into the class, make it sure that you are entering into the class with name and roll number, and only those students should enter, or those students should be entering into the class who are ready with their videos. Those who have not taken bath,
right? So this is your problem, not my problem. I request everyone to be ready when you are taking the class, because once we will say at least to switch on your video. The simple reason is that there are certain students who misuse the links and sometimes share with some other students who are not my student or not student of our college. Okay, so आप याद रखिए, आप वहां पर जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं उसमें आप भी शिकार हो सकते हो आपका नेम लेके, ठीक है? So I request everyone to put on your video, start your video. There are certain students like आकाश कुमार कन्हैया झा, वो बिना रोल नंबर के एंटर कर रहे, तो हम लोगों ने अलाउ नहीं किया. कनम शाह, गुड मॉर्निंग, by raising your hand. Good afternoon, sir. Oh, good afternoon, because since morning I'm taking classes. Good morning. A number of times I'm saying, right? By raising your hand, say good morning or good afternoon or present, sir. Good afternoon, sir. Ankush, Present, sir. right? Harmanpreet, Good afternoon, sir. good afternoon. Next, please, anybody who's present. Amanjot, last call, first and last call. First and last call. Mansi, Present, sir. Amanjot, video on कर रही है. Mansi, Present, sir. right? Komalpreet, Present, sir. Manmeet, Present, sir. Jaskaran, Present, sir. Jashanpreet, Sukhdeep and Amanjot. Sukhdeep, Present, sir. Yes, sir. Amanjot, Present, sir. right? Then Jaskaran, Arshleen. Jaskaran and Arshleen video on नहीं है. Present, sir. Present, sir. Right. Harsh Sethi, Present, sir. okay. And Jasdeep. Present, Jasdeep, sir. somebody tell Akash Kumar to join with roll number as well. Jasdeep, again I'm saying Jasdeep. Present, sir. Jasdeep, your video is not there, please, sorry. फिर मैं mark नहीं कर पाऊंगा. Requesting you this time. हर रोज मुझे एक बात ना Sir. करनी चाहिए. Sir, I messaged you on WhatsApp also. But every time I cannot. Kanhaiya Jha, please put on your video. I have not got any message, बेटे. Jasdeep कहाँ? अच्छा, Sir. COVID student. Yeah. Yes, sir. बेटे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो का तो कोई चक्कर नहीं है. लोग तो वहां बैठे हॉस्पिटल से नहीं. कॉल कर रहे हैं. It's not a big नहीं deal. सर, फिर वो मैं सुबह फिर जल्दी नहीं उठ पाता ना, तैयार नहीं हो पाता. ओके, चलो मैं तुम्हारे कन्हैया झा विदाउट वीडियो नहीं, रोल नंबर तुम्हारा नहीं था इसलिए मैंने ऐड भी नहीं किया था. सिमरजीत जल्दी करिए बेटे, आप टू टेक क्लास. कन्हैया इधर इन द क्लास और नॉट इन द क्लास. कन्हैया लास्ट टाइम कॉलिंग यू. कन्हैया आर यू इन माय क्लास? Kanhaiya, are you in my class? Yes, sir. Kanhaiya, you want me to cry like this? तुम्हें अच्छा लगता है मैं कन्हैया करता घूमूं? एक तो तुम रोल नंबर नहीं कर रहे थे, इतनी देर से एंटर कर रहे थे. कन्हैया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी. Kanhaiya has corrected me number of times. Good afternoon, sir. चलिए, that's good. Who has left? Simarjeet. 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 Simarjeet, you are not in my class. Simarjeet. Simarjeet, why are you not saying present, sir? Simarjeet lost. Akash Kumar. Akash Kumar. Akash Kumar. This is the hiccup of this online classes.
That's why I speak from. Akash Kumar, are you in my class? I will have to remove you otherwise. Yes, sir. बेटे सबकी वीडियो ऑन है, आपकी नहीं होती ना, आपका रोल नंबर है लगा हुआ है। आपसे मेरी कल बात हुई इसलिए मैंने अलाउ किया, अदरवाइज मैंने करना नहीं था। क्विकली करिए, मुझे क्लास लेनी है। यू हैव वेस्टेड माय टाइम। चलिए नहीं करना, ओके छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए अपने वीडियोस। अब आप ध्यान दीजिए पढ़ाई की तरफ। थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन ये हमने कल स्टार्ट करा था। मैंने कल बताया था कि राइजिंग प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और प्राइस राइज करने चाहिए। कल हमने बहुत सारी ऑनलाइन विजिट भी करा था, डिस्कशन भी करी थी, इसमें हमने देखा था कि प्राइस राइज कैसा होता है और कितना प्राइस राइज करना अच्छा है। ठीक है, इन्फ्लेशन मींस राइजिंग प्राइसेस। इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा प्राइस राइज करना अच्छा नहीं है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी कि इससे क्या होता है, रियल इनकम जो है आप लोगों की डिक्रीज कर जाती है। कीन्सियन व्यू देखा था, सेमी इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें मॉडरेट इन्फ्लेशन था, लेस देन 10%, जो टॉलरेबल होता है उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग। दूसरा जो इन्फ्लेशन है गैल्पिंग इन्फ्लेशन, जो तेजी से बढ़ता है, अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। 10% से लेकर 999% तक, यानी किसी चीज का रेट 10% बढ़े, जब 999% तक बढ़े तो हम गैल्पिंग इन्फ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है जो मोर देन 1000% बढ़े, मोर देन 1000% बढ़े। ठीक है, उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कुछ कॉजेज हैं उसके बेस पे भी हम लोग इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं। अब ये थ्योरी का भी पार्ट है, हम लोग थ्योरीज में भी देखेंगे, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में भी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ध्यान से समझना। द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसके कारण जो मार्केट में इन्फ्लेशन आती है। द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस रैपिडली देन द एग्रीगेट सप्लाई। यानी आपकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, कीन्स का कांसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड। कीन्स ने कहा था कि जो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हम उस पे से लेके देखें, फेस्टिवल्स हैं, डिमांड बढ़ जाती है। फेस्टिवल में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, क्रैकर्स की बढ़ जाती है, ठीक है, क्लोथ्स की बढ़ जाती है, अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं। जैसे कोविड पीरियड में कुछ मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, राशन की डिमांड बढ़ चुकी है, वॉर टाइम पे भी डिमांड बढ़ जाती है। ये तो एक्सेप्शनल केसेस है, बट हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड ये कहता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये कहता है कि जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाए, ना कि उनकी सप्लाई उतनी तेजी से बढ़ पाए। तो उस केस में हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, फॉर a given level of aggregate supply, the aggregate demand increases manifold, then the demand pull inflation occurs। यानी एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए किसी चीज की, सप्लाई ना उतनी हो तो रेट बढ़ जाएंगे। दिस इंक्रीज इन द डिमांड कैन बी ड्यू टू द मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, ये किस कारण होते हैं, मॉनेटरी फैक्टर्स के कारण। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड रियल फैक्टर्स। Okay, so increase in the money supply and real factor. For example, cut in tax rate, increase in government expenditure, up to upward shift in investment function, etc. अब आप देखिए, इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती, जब मनी मॉनेटरी फैक्टर्स है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए तो बहुत सारा पैसा, when large amount of money chases few goods, what will happen, there will be inflation। आपके पास जेब में बहुत पैसा है, चीजें थोड़ी हैं, तो आप ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है, रियल फैक्टर, कट इन टैक्स रेट कम हो जाए तो अल्टीमेटली लेमैन इज लेफ्ट विद एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास पैसा ज्यादा बच जाएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं
आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो 100 है, ठीक है। टैक्स रेट इज टैक्स रेट इज 10%। हाँ जी, व्हाट विल बी माय नेट इनकम, प्लीज टेल व्हाट विल बी माय नेट इनकम, व्हाट विल बी माय नेट इनकम। क्लास आप मुझे सुन पा रहे हो? 90। 90, ठीक है ठीक है ठीक है, 90 है ना। तो वो कैसे है, 100 माइनस 10%, यानी 100 माइनस 10% ऑफ 100, यानी 100 माइनस 10, 90। अब हम इस केस को अगला समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं दूसरे केस में जो हमारी इनकम है, ग्रोस इनकम जो है वो है 100, और गवर्नमेंट ने, नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आते टैक्स रेट कम कर देंगे। तो मेरे पास नेट इनकम कितनी बच गई? 92। 92। इट मींस एक्सेस मनी मेरे पास कितनी होगी? 2। एक्सेस मनी कितनी होगी मेरे पास? 92 माइनस 90 इज इक्वल टू 2, 2 रुपीस। 2 रुपये आ गए, ठीक है कि नहीं? यस सर। 2 रुपये बच गए, यानी मैं इस 2 रुपये को कहीं और भी खर्च कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। सो कट इन टैक्स रेट ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री ट्राई टू हैव हाई टैक्स रेट। अब जब टैक्स रेट ज्यादा रहेंगे तो पीपल विल हैव लेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और व्हेन दे विल हैव लेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे विल डिमांड लेस। ये उन इकोनॉमीज में अच्छा रहता है जब इकोनॉमी में गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर हम टैक्स रेट ज्यादा अज्यूम करें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सोच के करती है। बल्कि लोग कहते हैं कि देखो कोरोना का पीरियड था, एक तो हम लोग आगे मर रहे थे, प्रोडक्शन हुई नहीं, काम धंधे निकले नहीं, और काम धंधे निकले नहीं, और उसके अलावा क्या हुआ कि लोग, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिए ज्यादा। तो गवर्नमेंट ही सही नहीं है, पर गवर्नमेंट इसलिए करती है कि गवर्नमेंट लोगों के पास जो जितने गुड्स उतने हैं नहीं है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन हुई नहीं। अब देखो कोरोना पीरियड में तो व्हाट विल हैपन, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, रेट बढ़ जाएंगे, और एक बार रेट ऊपर चले जाएं तो रेट कम नहीं आते हैं जल्दी। आप ये देखिए एग्जांपल मान के चलिए, फॉर एग्जांपल एक ढाबे वाला है, ठीक है। अब ढाबे वाले ने एक जो थाली है वो 100 के बजाय 110 की कर दी। अब चाहे पीछे से इनपुट के रेट कम भी हो जाए, टमाटर सस्ते हो जाए, प्याज सस्ते हो जाए, पर वो बंदा 110 से 100 नहीं करने वाला है। वो नहीं कहेगा कि रेट सस्ते हो गए, वो 110 ही रखेगा। सो वंस रेट हैज गॉन अप, अल्टीमेटली देयर विल बी देयर विल बी ठीक है, इन्फ्लेशन इन द मार्केट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा भी दे तो उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने? गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, फिजिकल एक्सपेंडिचर, तो व्हाट हैपेंस इकोनॉमी में? कौन सा फैक्ट वर्क करता है? कौन सा फैक्ट वर्क करता है? यस स्टूडेंट्स, कौन सा फैक्ट वर्क करता है? सुन पा रहे हो मुझे? याद नहीं आ रहा। मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं हम उसे, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। अपवर्ड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए तो आउटपुट भी बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली लोगों के पास इंप्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है, और व्हाट हैपेंस देन, व्हाट हैपेंस देन अगेन इन्फ्लेशन आ जाता है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है।
आगे देखो, cost push inflation, demand pull, cost push. Cost push inflation occurs when the cost of raw material, labor, inputs. अब हम देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हमारे पास होते हैं, कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? हाँ जी बताइए, कौन कौन से होते हैं? लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर की फैक्ट्री इनकम क्या है? लेबर की फैक्ट्री इनकम क्या है? वेजेस, वेजेस। ठीक है, कैपिटल की इनकम क्या है? इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, ये रहते हैं चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी बिजनेस में ये चार फैक्टर्स ही लगे होते। लैंड लगी है, लैंड का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, सारा कुछ आता है। लेबर मतलब स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, जिसे हम व्हाइट कॉलर, ठीक है, ब्लू कॉलर लेबर कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, और तो सब लेबर में आ जाते हैं। कैपिटल जितना पैसा लगा है इन द फॉर्म ऑफ काइंड और डायरेक्टली, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड वालों ने शोर मचा दिया कि देखो हमारी रेंटल इनकम बढ़नी चाहिए, रेंट हम बढ़ाएंगे। जब एक कंपनी में जो जमीन किराए पे ली हुई है उसका रेंट बढ़ जाए, व्हाट विल हैपन? इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। लेबर ने अपनी वेजेस बढ़ा दी, खर्चे बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैपिटल ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, कैपिटल ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अब कैपिटल महंगी मिल रही है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ गई। एंटरप्रेन्योर ज्यादा प्रॉफिट सीकर हो गया, तब भी कॉस्ट बढ़ गई। इन सब केसेस में क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कहता है जब इन सब चीजों की, रॉ मटेरियल की, लेबर की, इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट। ठीक है, सच इन्फ्लेशन इज ऑफन कॉज्ड बाय मोनोपोलिस्टिक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी सच एज लेबर यूनियन एंड फर्म्स इन द मोनोपोली एंड ओलिगोपोली मार्केट। ये आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ के भी आए हैं कि ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है। ठीक है, इस केस में इन्फ्लेशन आ जाता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश? यस, एवरीबॉडी से यस और नो? Yes, sir. ओके, बाकी? यस सर, ओके, यस सर, ठीक है, कन्हैया ठीक है, आकाश ठीक है, हाँ जी, और? यस सर, ओके जशन, कॉस्ट पुश दोबारा बताना, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके हरमन। हरमन ऐसा है कि कॉस्ट जब बढ़ जाती किसी चीज की तो नेचुरली, आप दिखाओ, देखो एक दुकानदार को चीज बेचने के लिए बैठा है, अगर उसको महंगी पड़ेगी तो वो महंगी बेचेगा ना, हाँ अगर, जी। है ना? अगर मान लो उसके पास जो बंदे रखे हुए हैं उसने, वो उनकी वेजेस बढ़ जाए, इवन देन द कॉस्ट विल इंक्रीज, तो वो कहाँ से चार्ज करेगा? सेल में से चार्ज करेगा ना। तो जितने Yes. चीजों की कॉस्ट बढ़ती जाती है तो उससे चीजें महंगी हो जाती है, महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, ओके। बाकी अब दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट, ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये ध्यान से समझिए, क्योंकि ओपन और सप्रेस मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना डिक्रीज कर दे तो आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो उस केस में लोगों के पास इनकम आ जाती है, लोगों के पास इनकम आने से ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो इंडियन एग्रीगेट डिमांड मतलब एक बंदे की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट कहते हैं कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, पर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में आपको डिफरेंस पता है?
ठीक है, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चीजें आती हैं? कनव, कनव, यस सर। हाँ जी, क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? सर कैश फ्लो वगैरह नो सारा बेटे, कुछ आएगा कि आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से सुनी नहीं जो मैंने दिखाई थी, और साथ में मैंने पीपीटी भी जो भेजी थी। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है चेंज इन जीडीपी इन 2 करंट ईयर, सिंपल लैंग्वेज। पिछले साल हमारे कंट्री की जीडीपी थी 70 रुपी। इस साल हमारी जीडीपी जो है वो हो गई 80 रुपी। तो कंट्री ग्रो कर, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये समझ लगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बड़ा लोगों का साथ में, ठीक है, प्रोडक्शन कितनी बड़ी, आउटपुट कितनी बड़ी, फॉरेन करेंसी कितनी बड़ी, फॉरेन एक्सचेंज कितनी बड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें। इट्स ओके, यस सर। यस, याद रखा करें बेटे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। वार टाइम है आजकल, आप देखें तो कोरोना इज लाइक ए वार टाइम सिचुएशन। वैसे तो वार टाइम होता है जब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, वार टाइम। तो जब वॉर हो जाती है तो लोगों को पता होता है कि कर्फ्यू लग जाएगा, आ, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उस केस में सब चीजें महंगी हो जाती है, वो वार टाइम। पोस्ट वॉर भी होता है। पोस्ट वॉर में क्या होता है कि कंट्री की डिवास्टेशन हो चुकी होती है, उस टाइम प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो चुके होते हैं, ठीक है, नए सेटअप करने में टाइम लगेगा। तो वॉर के बाद भी जो इन्फ्लेशन आता है उसको वॉर टाइम, पीस टाइम इन्फ्लेशन भी कई बार काउंट किया जाता है। जैसे पूरी तरह पीस मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट हैज टू इनकर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन द सोसाइटी, है ना? तो उस टाइम के जो इन्फ्लेशन होते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन को। ये आप देखिए, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलपिंग इन्फ्लेशन। इस लेवल पे आप देख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, परसेंटेज 10% बढ़ा, 20 बढ़ा, 30 बढ़ा, 40 बढ़ा, 60 बढ़ा, 80 बढ़ा, 100% बढ़ा। यहाँ पर आप देखिए टाइम, 4 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर। तो अगर प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 24 ईयर में जाके 10% बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्रीपिंग होगी। अगर प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और टाइम भी कम ले रहे, तो वॉकिंग होगी। अगर सिचुएशन ये है, अगर आप देखिए तो ये सिचुएशन है, तो इसे हम बोलते हैं रनिंग। 4 सालों में ऑलमोस्ट 100% इन्फ्लेशन हो गया। यानी आज आपको चीज खरीद के आओ 100 रुपए की, आज से 4 साल बाद वो 200 रुपए की हो जाए, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन इज ऑन द रनिंग साइड, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन चीजें 2 साल में डबल रेट, ट्रिपल रेट पे जा रही हैं, ठीक है, मान लो आपने कोई गैजेट खरीदा 10,000 रुपए में, 2 साल में वो 20,000 में हो गया, फिर अगले 2 साल में वो 40 में हो गया, तो इसका मतलब गैलोपिंग है। पेपर में ये डायग्राम्स आप बनाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ। साथ साथ में स्टैगफ्लेशन जो मैंने अब एक्सप्लेन कर, इन्फ्लेशन की बात आता है स्टैगफ्लेशन। Stagflation occurs when inflation rises while output is either falling or at least not rising. ध्यान से समझने वाली चीज, स्टैगफ्लेशन अकर्स कब अकर करता है? व्हेन इन्फ्लेशन राइज, जब इन्फ्लेशन राइज कर जाता है, while output is either falling, जब आउटपुट फॉल कर रही, जब बिल्कुल भी राइज नहीं कर रही। कब ऐसी सिचुएशन आती है जब आउटपुट राइज नहीं करती? हाँ जी, आउटपुट कब फॉल करती है? तो जब डिमांड कम हो तब। डिमांड कम है तभी आउटपुट फॉल करती है। गुड। और सर ये वॉर्स वगैरह में जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी आउटपुट कम ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉर टाइम, पेंडेमिक टाइम, और
रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाए तब। एक्सीलेंट, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं, वेरी गुड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं, है ना, उनके यूजेस बढ़ जाएं, तो आउटपुट जो है वो उतनी बढ़ नहीं पाती। तो स्टैगफ्लेशन अकर्स जब आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है पर साथ में आउटपुट डिक्रीज कर रही है, जब बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके कारण क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर। अब लेबर की सप्लाई नहीं, लेबर, अब पंजाब में आप देखो जगह जगह पे लिखा हुआ है लेबर चाहिए, लेबर चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर, जब लेबर ही नहीं है तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब टैक्सेस बहुत लग रहे हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस करने का फायदा नहीं, क्योंकि लोग महंगी चीज खरीदेंगे नहीं चाहते। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने पर जो है स्टैगफ्लेशन आ जाता है। ग्लोबल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल। जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है, अगर उसकी जो प्राइसेस बढ़ जाए ग्लोबल, तो उसके कारण भी स्टैगफ्लेशन आ जाए। जो कंट्री हमारे कंट्री में नहीं मिल रहा, मान लो खाना बनाने के लिए नमक इज रॉ मटेरियल, एक बेसिक रॉ मटेरियल है, असेंशियल रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस बढ़ जाए नेचुरली, तो चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। अनियन अनियन का रेट बढ़ जाए, टमाटो का रेट बढ़ जाए, तो खाना बनाना महंगा हो जाएगा। तो जो जितनी भी होटल इंडस्ट्री है वो सफर कर, इंक्रीज इन मनी वेजेस बढ़ रही, बट गुड्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। किसी बंदे की तनख्वाह मिस्टर ए है, उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, 100 से 200 हो गई है, अब वो भी चाहता है शॉपिंग करने, पर प्रोडक्शन तो उतनी थी, शॉपिंग करने वालों की लिस्ट बढ़ गई है, तो डिमांड है नहीं, और डिमांड बढ़ गई है पर गुड्स उतने हैं नहीं। अल्टीमेटली देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द मार्केट। इज इट क्लियर? मेजर्स टू कंट्रोल स्टैगफ्लेशन। एंटी इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसीज गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेके आने पड़ेंगी जिससे लोगों की इनकम जो है वो बढ़े, पर उतना उनके हाथ में बचे ना। उसके लिए तरीका क्या है, वो बता सकता है कोई? क्या तरीका हो सकता है उसके लिए? क्या तरीका हो किसके लिए? सकता है? हाँ, क्या? सर किसके लिए? इनकम बढ़े पर उससे इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदे, फिर तो यही ऑप्शन बचता नहीं था। अगर ऐसे कोई पर लोग तो हटेंगे अगर नहीं इनकम जिनके पास बढ़ती इनकम रहेगी है। तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, मतलब जो दूसरी लग्जरी गुड्स नहीं, वगैरह। इसका तरीका क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स गवर्नमेंट मोटिवेशनल तरीके निकालती है, लोगों को मोटिवेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ रही है, आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, इससे बचने के लिए आप सेव करिए। तो गवर्नमेंट लोगों को पीपीएफ पे इन्वेस्ट करवाएगी, पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कराएगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट कराएगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट मेक्स द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सेविंग स्कीम्स, so hence people will be left with less amount of income and they will be spending less. Okay, so inflation कम आएगा। ठीक है, समझ लगी? यस सर। गवर्नमेंट कंट्रोल करे प्राइसेस को, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। अगर किसी चीज की डिमांड कम करनी है तो गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा सकती है, और अगर बढ़ानी है तो उसकी डिमांड पे उसके टैक्सेस कम कर सकती है। गवर्नमेंट प्राइसेस एडजस्ट कर सकती है, ठीक, अपने हाथ में कंट्रोल लेके। जैसे मेडिसिन हैं उनके प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है। ओके, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है। तो एडजस्टमेंट करने से भी बढ़ता है। लास्ट इज मैन पावर पॉलिसीज। गवर्नमेंट मैन पावर पॉलिसीज लेती है, ठीक है, जिससे लोगों की इनकम बढ़े, लोग इंटेलिजेंटली स्पेंड करें। फिलिप्स कर्व हम कल करेंगे, ये एक नया टॉपिक है, फिलिप्स कर्व हम करेंगे। अप टू दिस एनी प्रॉब्लम? नो सर। We are left with only 2 minutes. Up to this any problem, please? Sure, no problem. तो हम लोगों ने आज क्या करा, एक बार हल्की सी रिवीजन देख लेते हैं। एक वीडियो देखने के बाद हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ा था, जो कल से कंटिन्यू करा था। हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मॉडरेट, गैल्पिंग, हाइपर, डिमांडफुल एंड पोस्टफुल। मेन फोकस जो था मॉडरेट था, 10% से कम,
गैलपिंग था 10 से 999 और हाइपर था अब 1000%। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, एग्रीगेट डिमांड कंट्री की बढ़ जाए उससे इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जिससे कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, तो इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ जाए, उससे जो इन्फ्लेशन आता है। फिर बाकी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े थे हमने, ये डायग्राम देखी थी, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड गैल्पिंग। क्रीपिंग इज गुड, वॉकिंग इज आल्सो क्वाइट गुड बट नॉट वेरी गुड, रनिंग इज डेंजरस एंड गैल्पिंग तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता है। स्टैगफ्लेशन था, स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है आउटपुट राइज करने, आउटपुट ना राइज करने से, यानी आउटपुट इज फॉलिंग और एटलीस्ट नॉट राइजिंग, ठीक है। इसके कॉजेज देखें और मेजर्स से, ये हमारा आज का टॉपिक था। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, काइंडली पुट योर वीडियो ऑन। हरमीत सिंह, आपने शायद लेट ज्वाइन करा है क्लास को। अमनजोत, वीडियो ऑन करिए। हरमीत सिंह, अमनजोत, अमनजोत, ठीक है, ओके अमनजोत, ठीक है अमनजोत। हरमीत सिंह, हरमीत सिंह, हरमीत सिंह, आर यू इन माय क्लास और नॉट? ये फायदा नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ा। और कोई जिसने लेट ज्वाइन करा है क्लास को, बीच बीच में क्लास में आ रहे थे स्टूडेंट, मैंने लॉक नहीं किए क्लास। सर मैं लेट नहीं सीगा, मेरा कनेक्शन टूट गया सीगा, पहले ओके ज्वाइन की ओके थी ओके, ठीक है अमन, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल आप जब ज्वाइन करेंगे क्लास तो विद फोन नंबर और फोन नंबर के साथ, सॉरी, रोल नंबर